Hi guys, welcome back to my YouTube channel Anthropology 360 Degrees, which is a complete lecture series on anthropology. So in the previous lecture, we in detail understood what is evolution and what is the relationship between biological and cultural genesis. So in today's lecture, particularly we'll do all the pre-Darwinian theories, starting from the theory of eternity or the theory of divine creation, then panspermia, then we'll do the theory of catastrophe. Then we'll also do the theory of Lamarckism, the theory which Lamarck gave. We'll do that also. So आज का जो lecture होगा वो mainly focused होगा on the pre-Darwin theories. As I earlier told you all that I'll go very slow with the physical anthropology portion so that it is easily comprehended by all of you. So that is why I'm taking the topics very slowly and so that you people can understand and as well as you can replicate in the exam also. We'll begin with the pre-Darwinian theories. So first one is theory of eternity जिसे हम theory of divine creation भी बोलते हैं. ठीक है. इस theory ने बोला था कि जो भगवान है उसी ने हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया है directly. Okay, that this theory explains that God created all living organisms. ठीक है. फिर इस theory के अंडर ना कुछ सब पार्ट्स आते हैं. We'll study that also. It is believed कि जो Father Suarez थे, he was a Spanish monk. He gave a 6-day theory, right? कि उन्होंने एक टाइप की theory दी कि living organisms जो थे within 6 days they were created. Then there was a Irish bishop James Ussher. James Ussher gave a 404 BC theory कि जो भी living organisms बने थे they were made in 404 BC. I hope you know the concept of BC and AD. You might have done in your history class. Then there is another personality who was the VC of Cambridge, Dr. John Lightfoot. He gave his part of the theory that God created Adam and Eve. कब उन्होंने create किया था? On 23rd October 404 BC, same as James Ussher. He gave the same date as James Ussher. But कब बनाया? At 9 a.m. So if we look into the theories, these theories completely give the regional dominance over science. Sorry, religious dominance over science. I'll correct myself. These theories give religious dominance over science. Okay. So जो ये theory है, I hope जो theory of divine creation है वो आपको clear है. It is simply that God created living organisms, right? आप आगे भी जो भी theories पढ़ेगे उसमें सबसे पहली theory जो होती है वो divine creation की होती है क्योंकि it is very easy to put everything on God, right? कि जो भी चीज हुई है वो भगवान की वजह से हुई है. So that is why जो भी theory आप पढ़ते हैं सबसे पहली theory जो most of the theory जहाँ से start होती है वो theory of divine creation से ही start होती है. So I hope ये जो पहली theory है theory of divine creation ये आपको clear है. So second one is theory of panspermia. ठीक है. Theory of panspermia यानी कि जो theory of cosmic origin. इस theory ने बोला कि जो life है it did not originate on the earth. उस theory ने बोला कि जो life है वो earth पे originate नहीं हुई है but it was brought from the outer space in the form of spores, bacteria, gametes, microorganisms. ठीक है. इन्होंने बोला कि आउटर स्पेस में जो है वहां से चीजें ट्रांसपोर्ट हुई हैं अर्थ की तरफ और फिर उनसे जो है लाइफ की ओरिजिनेशन हुई है
अर्थ में, ठीक है। इन्होंने एक और चीज बोली कि द यूनिवर्स इज फिल्ड विद सीड्स ऑफ लाइफ, ठीक है। इन्होंने बोला जो यूनिवर्स है वो लाइफ, जो सीड्स ऑफ लाइफ है उससे भरा पड़ा हुआ है। एंड दीज लाइफ, ये सारी जो जो सीड्स ऑफ लाइफ है ये क्या है, आउटर स्पेस में है, और वो अर्थ पे आती हैं वाया मीटियोर्स, कॉमेट्स, कॉस्मिक डस्ट, रेडिएशन वगैरह। आई होप ये वाला पॉइंट जो है थियोरी ऑफ पैंस्पर्मिया, इट इज क्लियर टू यू। ओके, ये बहुत इजी है। अगेन आई थोड़ा सा मैं आपको वापस इस पे थोड़ा बताती हूँ। थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया ने बोला कि जो लाइफ है वो अर्थ पे ओरिजिनेट नहीं हुई है, बल्कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर स्पेस, ओके, इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, स्पोर्स, गैमीट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। और फिर उन्होंने बोला था कि जो आउटर स्पेस में है वहां से जो लाइफ है इट ट्रांसपोर्टेड टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ मीटियोर्स, कॉस्मिक डस्ट, ओके। सो आई होप ये वाला पोर्शन आपको थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया या कॉस्मिक ओरिजिन क्लियर हो चुका है। द थर्ड थ्योरी, दैट इज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। आई थिंक आई शुड टेक अ डिफरेंट पेन, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉस्मिक स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी इसका दूसरा नाम है ए बायोजेनेसिस, ठीक है। ये वर्ड ही आपको बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। जेनेसिस मीन्स ओरिजिन, ए बायो ओरिजिन मतलब ओरिजिन जो हुआ है वो बायोलॉजिकल बीइंग से नहीं हुआ है, किसी नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेशन हो रही है लाइफ की। सी, मैंने ये हिंदी में बोल दिया, नाउ सी यही मैं रेप्लिकेट, आई रेप्लिकेट दिस इन इंग्लिश। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर सूटेबल कंडीशन, ठीक है। वो सूटेबल कंडीशन फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल कंडीशन भी हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर कोई मीट है सपोज, ठीक है, हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे घर में ब्रेड पड़ी होती है। इफ यू कीप दैट ब्रेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम outside, then you will see that fungus will start getting accumulated on that bread. What is bread? It is a non-living thing. But what originated out of that bread? Spores, fungus, which is a living being. Again, I'll take an example of a meat, ठीक है। मीट की क्या एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं मीट को बाहर रख दूं, यू विल सी दैट स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स और मैगॉट्स विल स्टार्ट lingering over that meat. What will it explain again? It will explain कि मीट जो था वो नॉन लिविंग था, वहां पे जो इंसेक्ट्स वगैरह आए वो लिविंग थे। सो इट क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट कि जो ओरिजिन हो रहा है लाइफ का, दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग, ओके। सो आई होप ये वाला जो है एग्जाम्पल ऑफ ए बायोजेनेसिस, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। देन हम आएंगे थियोरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म पे। कैटास्ट्रोफ क्या होता है? एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, दिस वाज गिवन बाय जॉर्ज क्विवर, जॉर्ज क्विवर, ठीक है। इस थियोरी ने बोला, इस थियोरी को मैं सिंपली आई पुट इट इन माय वर्ड्स एंड देन आई गिव अ मोर पॉलिश्ड डेफिनेशन। इस थियोरी ने बोला कि अर्थ में जो इवेंट्स होते हैं वो बड़े ही सडन होते हैं, वो बड़े ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इन सडन और शॉर्ट लिव्ड इवेंट्स को आप बोल सकते हैं कैटास्ट्रॉफ्स, लाइक फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए। सो इन फ्लड्स और अर्थक्वेक की वजह से क्या हो सकता है, इन द ओल्डर टाइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वहां पे हुई मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन से क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स मर गए। अब अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स मर गए हैं, उनकी जगह कोई रिप्लेस तो करेगा ना, तो वहां पे जो न्यू लाइव्स आई, दिस इज द थियोरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। लाइक दिस थियोरी proposes Earth's history has been shaped by sudden short-lived violent catastrophes, which led to mass extinction, which again led to replacement of old
replacement of old lives with new ones. Getting my point? इस समझ आ गया आपको ये वाला? और इसका क्रिटिसिज्म क्या लिख सकते हैं कि इन्होंने बोला कि इस थ्योरी के हिसाब से जो मैंने डेफिनेशन बोली, इट शोज दैट एवोल्यूशन बड़ी फास्ट होती है, बट नो, एवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. इट इज नॉट लाइक कि आज कोई इवेंट आ रहा है, फ्लड आ रहे हैं तो उस 10 दिन बाद न्यू लाइव्स आ जाएंगी. नो, इट कैन टेक मिलियन एंड बिलियन ईयर्स, बिलियन ऑफ ईयर्स. ओके, आई होप ये वाली जो थ्योरी है ऑफ catastrophism, it is clear to you. So let us start with Lamarck theory of evolution, which is a part of Pre-Darwinian theory. मतलब which is a part of Pre-Darwinian part. यानी अभी हम Pre-Darwinian ही कर रहे हैं. उसमें जो हमने पढ़ा अभी तक, जो सबसे पहला था हमारा theory of divine creation, panspermia, spontaneous generation, catastrophism, and now we'll study Lamarck की theory. And Lamarck की theory बहुत important है और इस पे questions भी आते हैं. ठीक है? Lamarckism, which is named after the French biologist Jean-Baptiste Lamarck, ये scientist थे. He gave the theory of Lamarckism. इन्होंने बोला कि evolution is a result of change that occurs in organism during their lifetime due to environmental influences and their needs. इन्होंने बोला जो भी evolution हो रही है ना किसी भी organism में, it is due to environmental factor, या फिर environmental factor है या need की वजह से वो changes आ रहे हैं. ठीक है? जो 4 major proponents थे, sorry, the 4 major postulates थे of Lamarck theory, वो थे theory of Ellen White, theory of environmental pressure and new needs, theory of use and disuse, and theory of inheritance of acquired characteristics. So first we'll begin with the theory of Ellen White. Okay, I take a new page. Theory of Ellen White. Ellen White का मतलब होता है internal vital force. Okay, इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स possess an internal life force. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक इंटरनल लाइफ फोर्स है और यही फोर्स है जो अलाउ करती है उन ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में और हेल्प करती है टू डेवलप न्यू ऑर्गन्स. गॉट माय पॉइंट? देन जो हमारा सेकंड है वो आता है थियोरी ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर एंड न्यू नीड्स. इस थ्योरी में बोला, इस पार्ट में बोला गया है कि चेंजेस इन एनवायरनमेंट क्रिएट न्यू नीड्स. यानी कि अगर चेंज होगा एनवायरनमेंट में, इट विल क्रिएट न्यू नीड्स. ओके, यानी कि अगर सपोज देयर इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट तो बॉडी को भी उस तरीके से अडेप्ट करना पड़ेगा. वो नीड अराइज हुई बॉडी की टू अडेप्ट टू अ सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन, तो उस हिसाब से एवोल्यूशनरी चेंजेस आते रहेंगे. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसका है एक्वेटिक बर्ड्स डेवलपिंग वेब्ड फीट. ठीक है, इसमें हम जिराफ की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले जो जिराफ होते थे उनकी नेक जो होती थी दैट वाज वेरी शॉर्ट, बट लेटर वी सॉ ड्यू टू इट्स नीड ऑफ रीचिंग टू दिस ट्री विच इज हायर, उसकी नेक इलोंगेट हो गई. ओके, कि उसकी नीड अराइज हुई ड्यू टू द एनवायरमेंटल प्रेशर. व्हाट वाज द एनवायरमेंटल प्रेशर? कि द ट्रीज वर हायर, द जिराफ वाज अनेबल टू गेट टू द लीव्स व्हिच वर हायर. ठीक है, so the giraffe was unable to get to that tree
तो देयर अरोज अ नीड ऑफ गेटिंग अ लॉन्गर नेक, तो उस वजह से वो लॉन्गर नेक इवॉल्व हुई. ओके. So as a part of Lamarckism, the third postulate is theory of use and disuse. It says कि frequently used organs जो हैं they become stronger and hence more developed. Okay, and unused organs जो हैं they weaken and disappear. Example of use आ जाएगा strong biceps of blacksmith and लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, जो कि हमने पहले भी we did it in theory of environmental pressure in new needs. Then theory of sorry example of disuse आ जाएगा. We know vestigial organs. Okay, flightlessness in kiwi, यानी कि जो कीवी के जो कीवी वर्ड है उसके जो विंग्स थे they were of no use, so जो उसकी functions थे वो disappear होने लगे. Okay, so the wings of kiwi were of no use now. जो डी है theory of inheritance of acquired characters. It means that traits जो एक्वायर किए किसी वो ऑर्गेनिज्म ने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यानी कि लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ सपोज कर लो, ये ट्रेट एक्वायर किया जिराफ ने इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये क्या करते हैं, ये पास ऑन कर जाते हैं टू इट्स ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि ओवर जनरेशन जो है दे पास ऑन टू वन जनरेशन टू अनदर. सो लेट अस बिगिन विद अ क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म. ओके, पहला एक्सपेरिमेंटल रिजेक्शन. एक जर्मन साइंटिस्ट थे ऑगस्ट वीसमैन. उन्होंने क्या किया, ही डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही कट द टेल ऑफ द माइस, यानी कि जो चूहे थे उनकी टेल को कट किया. एंड देन ही सॉ कि क्या ये चीज जो है उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगी या नहीं. उन्होंने देखा कि जो आगे ऑफस्प्रिंग पैदा हुए उनकी तो टेल कट, मतलब जो उनकी टेल थी वो कट नहीं थी, जो जैसी नॉर्मल टेल होती है वैसी थी. सो ये वाला जो उन्होंने जो जो फोर्थ पॉस्टुलेट दिया था थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, वो यहाँ पे गलत प्रूव होता है. राइट. फिर उन्होंने एक दिया debate between genetic inheritance and somatic inheritance. Lamarckism proposed that somatic यानी कि body acquired characters could be inherited. However, जो later research उन्होंने बोला, जैसे कि जो long neck थी जिराफ की, उन्होंने बोला कि ये जो है ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. बट जो लेटर रिसर्चेस थी उन्होंने बोला कि सोमैटिक सेल से पास ऑन नहीं होता है, बट इट इज थ्रू गैमीट्स. गैमीट्स से जो कैरेक्टर्स हैं वो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में पास होंगे, ना कि सोमैटिक सेल्स पास होंगे, सोमैटिक सेल्स के ट्रेट्स पास होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बट आई होप कि it is clear to you. I'll quickly go through the Lamarck theory again. Lamarck ने बोला था कि जो changes है it is due to the environment or the need that has arisen. Okay? उन्होंने theory of एलन वाइटे दी थी, theory of environmental pressure and need दिया था, theory of use disuse दिया था, plus theory of inheritance of acquired characters. एलन वाइटे मतलब internal force. It told that लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक इंटरनल फोर्स होती है, वही इंटरनल फोर्स जो है वो ग्रो और डेवलपमेंट न्यू ऑर्गन्स के लिए हेल्पफुल होती है. थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रेशर एंड न्यू नीड्स ने बोला था कि जो चेंजेस हैं दैट इज चेंजेस इन द एनवायरनमेंट लीड टू न्यू नीड. और इनमें हमने वेब्ड फीट की एग्जांपल दी थी और जिराफ की. थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज में बोला था कि द मोर यू यूज अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म ऑर्गन इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड मोर डेवलप्ड, और जिस ऑर्गन को आप कम यूज करोगे वो वीकन हो जाता है और डिसअपेयर होने लगता है. ओके,
देन theory of inheritance of acquired characters बोला कि जो characters हैं like the long neck of giraffe it passes on from one generation to another. Then we did certain criticism like rejection experimental rejection दी थी. एक और हम criticism देख सकते हैं कि use does not always lead to increase of a certain organ. Like हमारा human heart है, it continuously pumps blood throughout the body, but it has a certain small size. तो उसके continuous use से ऐसा नहीं हुआ कि it has been passed on from one generation to another, right? और इन्होंने बोला था कि जो evolution है it is not always progressive. हम बोलते हैं कि evolution is directional and progressive, but we have seen that, for example, we take the example of an dinosaur. एवोल्यूशन हुआ डायनासोर का बट इट गॉट एक्सटिंक्ट इट डिडंट एग्जिस्ट नाउ इट हैज एक्सटिंक्ट तो इट इज नॉट ऑलवेज प्रोग्रेसिव इन नेचर तो आई डिड विद ऑल द थियोरीज ऑफ प्री डार्विनियन के हमने सब थियोरीज कर ली नाउ in the next lecture we'll do the Darwin theory which is very important and I think I should end with this lecture today and I hope you have understood this lecture. I have gone very slow, and in this language, I have seen that many of you wanted that I should use a bilingual mode, that is Hindi and English as well. So that is why I've used two languages today, so that you people can easily comprehend it. So if um, let us do the drill of liking, sharing, and subscribing to the YouTube channel so that we can all glow and grow together. And if you people have any sort of doubts, please write in the comment section. I'll go through it. And if you people want, we'll have a doubt session also. Okay. Have a great day, everyone.